A very good afternoon, one and all. I welcome you all for today's session, and it is my great privilege to be a moderator for this session. So, our today's session is on I have fibroids and infertility. So, what do I do? To begin with, I would like to introduce Dr. Pankaj Talwar, sir. Sir is a teacher and par excellence who needs no introduction, but still a great honor for me to formally introduce Sir. Sir Dr. Professor Colonel Pankaj Talwar, MD, PhD. Sir is CEO at iHoma Fertility Clinics and Training Academy at Gurugram and Delhi. Sir is Dean, Department of Clinical Embryology and Reproductive Sciences at Pilani, Sridhar University. Sir is PhD in Clinical Embryology and he has been awarded the Vishisht Seva Medal by the Government of India for his exemplary work in the field of infertility and reproductive medicine. Before I hand over the mic to Sir, I would just like to give a brief introduction about what are fibroids. They are an enigma that plague most of us, be it patient or doctors. So fibroids are basically non-cancerous lesions that affect the uterus, most commonly seen in the reproductive age group and seen in 30 to 40% of the patients. So, to enlighten us and throw some light on this topic, I would like to hand over the mic to Sir. Sir, please, we are all waiting. Thank you, Arpita, and really good seeing you again. My pleasure, sir. Always a pleasure to listen to you. It was, good talking to everyone, and we try to speak to everyone every 15 days or 1 month. So, Arpita, as you know, that we pick up very simple topics which are of day-to-day Yes. knowledge to all of us. और हमें बड़ा अच्छा Yes. लगता है सबसे बात करके एंड पीपल कनेक्ट टू अस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो Yes. आज का जो विषय आपने चुना है एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप फाइब्रॉइड्स टुडे. फाइब्रॉइड इज अ वेरी कॉमन थिंग. और जब हम व्हेन वी वर यंग, I can say now at 58 that once we were young, जब हम एमडी कर रहे थे तो हमें पढ़ाया गया था कि यूट्रस के अंदर या तो बच्चा होगा या फिर फाइब्रॉइड होगा. That's I'm Yes. saying an old saying which is around more than 30 years back when we were learning. I think it still holds true with the newer modalities which we are having Yes. now in diagnosis. Nearly every second, third patient who comes to us for infertility, not general population, they are having Yes. some sort of small or big fibroid. I Yes. think it's a very common condition, and but True. not all fibroids can lead to infertility or fertility issues. But एक हमारे दिल में जो धारणाएं बनी हुई है ना, तो डर बैठ गया हमारे माइंड के अंदर कि फाइब्रॉइड है तो ये करना है, फाइब्रॉइड है तो वो करना है. These all things we like to cover start from today. So thank you so much for being my moderator. All yours, all over to you, Arpita. You can take on. Once again, it's an honor for me. And so, the first question that I would like to throw to you, sir, is so what are fibroids basically, and how do they affect the fertility in women? Yeah, so this question I was anticipating और हमने बात भी करा था इस बात पर. सब लोग पूछते भी हैं कि फाइब्रॉइड होता क्या है. When you talk about infertility, Arpita, after COVID, I'm finding a big change the way we think. Yes, कोविड से yes, पहले जो दुनिया थी और कोविड के बाद की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ गया. I think COVID has led us to Instagram and Twitter and LinkedIn, and everyone is highly educated now. yes. इससे So पहले था true. कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, Hmm. क्या इलाज है मेरे, मुझे क्या करना चाहिए. और आजकल लोग आगे बोलेंगे आई गोट सब म्यूकस मायोमा, WHO Yeah. 012 FIGO 012, what should I Yes. do. कुछ लोग आके हमें फोन करते हैं. सब लेडीज कॉल मी फ्रॉम स्मॉल स्मॉल विलेजेस. दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर कंट्री द वे इट इज इवॉल्विंग अंडर लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. दे वेरी सिंपली से आपके पास लेजर हैचिंग है क्या. I wonder how do these people know about laser hatching. So that's the way the country is evolving, and I feel very happy. But आज का विषय is very very simple topic. What is fibroid? I can tell Yes. you that people, we have Google University, we have Dr. Google everywhere telling people, and a lot of people go to YouTube and Facebook and try to learn. And आज हम भी दोबारा से we are again on Facebook and YouTube. So let's keep it very simple. So I will show Yes. you a model. So Arpita, this is the model of the uterine anatomy. आप देख पा रही हैं Yes. so Hanji, Hanji, sir. Yes. now when you look at it,
what we have here is the vagina. Okay, Yes. and then Yes. as you move up, we have the cervix here. Yes, इसके sir. ऊपर ये गर्भाशय का एक मॉडल है. सो एवरीवन जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, all our friends, all our students, all our patients, and जो भी हमारे हमारे साथी हैं उनको एक छोटा सा आई वांट टू शो यू स्मॉल मॉडल. सो व्हाट यू सी हियर इज द मॉडल ऑफ यूट्रस. वी कॉल इट गर्भाशय. तो हम सब जानते हैं दैट एवरी वुमन हैज गॉट वन यूट्रस एंड शी गॉट टू ओवरीज. एक ओवरी इधर होती है और एक ओवरी इधर है. देयर टू ओवरीज एवरी वुमन हैज, एंड देयर आर टू हाँ जी. फैलोपियन ट्यूब. अगर देख पा रही हैं तो बहुत के अंदर. एम आई क्लियर Yes, अर्पिता? yes, आप sir. We can see. Yes, sir. या You're clear. We can see what you're showing. yeah. So there are two ovaries, two fallopian tubes. So one fallopian tube, second fallopian tube, ovary. और ये जो यूट्रस है ना, इसे हम हाँ गर्भाशय जी. कहते हैं. यहाँ पे ना तो गर्भ ठहरता है, where the pregnancy comes. It's called the uterus. The uterus is made up of muscle. Like all our body organs, we have got a muscle which is making the part of it. Yes, Muscle sir. will be there in every part of our body. तो यूट्रस की जो मसल है ना, ये देख पा रहे हैं इसको आप, जो लाल कलर की है, हाँ जी. और ये यूट्रस कैविटी है जहाँ पर बेबी 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 अपना जन्म लेता है. यूट्राइन कैविटी तो छोटी सी कैविटी होती है, जिस अराउंड 8 to 10 ml कैविटी. इट कैन बी स्मॉलर इन द बिगनिंग. हाँ जी. सो बेबी विल गेट इम्प्लांटेड हियर. सो अगर हम देखें जर्नी क्या होती है किसी भी स्त्री के अंदर, तो जर्नी इज दैट वी फाइंड दिस फॉलिकल ऑफ द ओवरी, फ्रॉम वेयर वन एग विल कम हियर. And then we'll have हाँ sperms जी. coming from below. The white ones are these sperms. You can see these white ones I hope you're able to see them. The white dots Yes, we are are these, able to. Yes, sir. and then they fertilize the egg here. Then egg will gradually roll down and come and get implanted in the cavity here. Okay. So Yes, sir. जो यूट्राइन की जो यूट्रस की जो बॉल होती है ना, जहाँ पे बेबी को बैठना है, इट्स a very important part of our body, the uterine muscle. और यूट्राइन मसल इज ए वेरी सॉफ्ट मसल. बट जब किसी कारण हाँ से जी. यहाँ पे एक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे मसल विल स्टार्ट proliferating. This muscle will become bigger and bigger, and as a result, we'll have a small non-cancerous growth coming. Now I'll show you one more thing here. I hope you're able to see this, Arpita. Yes, So we are able to see. similar diagram. So we have the here we can see is the vagina. As you can see, the vagina. And then we have the हाँ जी. uterus, हाँ uterine जी. muscle wall. You can see the fallopian tubes here. These are fallopian tubes here. Yes. These are Yes, ovaries, sir. and same thing on this side also. जब किसी Yes, sir. कारणवश अगर ये जो मसल की जो गांठ है, the wall of the uterus, which is a muscular wall, undergoes some sort of growth, and it is normally non-cancerous growth. It's a tumor which won't spread. हमारी धारणाएं हैं हाँ कि जी. कैंसर बन जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इट डजंट स्प्रेड. एंड अगर ये मसल का जो पीस है, इट बिकम्स लाइक ए बॉल हियर, इट बिकम्स ए फाइब्रॉइड. सो जो लाल Yes. रंग की मसल है यूट्रस की, इट बिकम्स ए बॉल ऑफ टिश्यू विच इज ग्रोइंग at a very slow pace or sometimes at a rapid pace, and this is called a fibroid. So fibroid जब जो अगर ये फाइब्रॉइड यूट्रस की वॉल के अंदर है, तो इनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड. यानी कि Okay. जो जो फाइब्रॉइड्स हैं वो यूट्रस की वॉल के अंदर हैं, तो उन्हें कहते हैं म्यूरल मींस द मसल पार्ट. यहाँ पे समटाइम्स द फाइब्रॉइड्स कैन गो इनसाइड द कैविटी जहाँ बेबी को इम्प्लांट होना होता है. अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर एक फाइब्रॉइड अंदर भी आ गया. हाँ It's जी. called a Yes. submucous fibroid. And the fibroids can be here, they can be here. Sometimes the fibroids can go down, and that it will become a cervical fibroid, हाँ and it जी. will have its own different complications. In large number of cases, fibroids are hanging outside, or they're part of the outer wall of the uterus. और जब ऐसा होता है, we call it a subserous fibroid. So मैं जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर, we have now 21 people, so thank you so much for being with us. So Arpita, so my definition of fibroid will be a tumor or a growth which is not cancerous and which is found growing from the uterine wall, uterine muscle. It is not cancerous. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कैंसर नहीं होता है. And then it can be in the wall of the uterus, then we call it an intramural fibroid. Neural. It's a muscle growth.
अगर वो गर्भाशय के अंदर, जो कैविटी के अंदर ग्रो करता है with a pedicle or if it grows inside, it is called submucous fibroid. और अगर वो गर्भाशय यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू करता है, then we say it is the case of a subserous fibroid. तो 3 तरह के फाइब्रॉइड होते हैं depending upon from where they arise. So I've told you what is a fibroid and where does it come from and how does it present with the help of a model. So I think thank you so much for this. Yes. So wow sir, like always हर बात को आप इतना अच्छी से क्लियर कर देते, तो जिन के मन में डाउट था कि क्या ये कैंसर है क्या नहीं है, आई एम श्योर आज वो दूर हो गया होगा. सो थ्रोइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एट यू सर. सो डू ऑल फाइब्रॉइड्स, यानी कि हर तरह के फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू कंसीव? डू ऑल ऑफ देम नीड ट्रीटमेंट और सर्जरी, वेदर सर्जरी और मेडिकल? Oh wow, very good question again. I think it's a very very good question and thank you so much for throwing it at me. I hope I'm able to catch it well. वैसे पकड़ पाऊंगा ठीक से and but very good question. Thank you. So जैसे मैंने बोला कि फाइब्रॉइड 3 तरह के होते हैं, मोटा मोटा 3 तरह के होते हैं. इनकी और भी टाइप्स हो सकती हैं. There can be a pedunculated fibroid. There can be a fibroid which doesn't have a pedicle also. There can be sessile fibroids. But the fibroids जो normally होते हैं, so they are the ones which are ये अगर हम एक ओवरऑल पॉपुलेशन देखें अर्पिता, सो ओवरऑल पॉपुलेशन में एट बिटवीन 30 and 40 years of age, वही स्त्री का जो एज है वो द एज ऑफ कंसेप्शन, मतलब वुमेन इज गोना कंसीव एंड बिकम ए मदर. So at 40 years of age, she has an incidence of around 50% of chance of having the fibroid. This is a overall incidence of fibroids which we find in the normal population. But this is quite high when we look at the case in our OPDs. Probably we get only in fertile cases. So my incidence may be 60-70%. But all the fibroids does not need treatment. From the very beginning we have been told fibroid है तो ऑपरेशन कराओ, फाइब्रॉइड है तो यूट्रस को निकाल दो. इनफैक्ट वन ऑफ द कॉमनेस्ट इंडिकेशन ऑफ डूइंग यूट्रस रिमूवल, वी कॉल इट हिस्टेक्टोमी टू फाइब्रॉइड्स. अगेन एक्चुअली व्हेन आई वाज यंग, मुझे अच्छा लगता है बोलकर, व्हेन आई वाज यंग सम इयर्स बैक, 20 years back, अब तो हमेशा यंग ही है. our capability was seen by how well and how easily we can remove a fibroid. अगर हम खूब अच्छे से फाइब्रॉइड निकाल देते हैं, यूट्रस को निकाल देते हैं, या we call it an hysterectomy. We take out the uterus either through the vagina or by laparoscopy or through using abdominal open case. We felt ये तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, इन्होंने झट से हमारे यूट्रस को निकाल दिया, अभी छुट्टी हो गई, कैंसर नहीं बनेगा. So because being in the army, I have traveled a lot across the country and I have operated in इंटीरियर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कश्मीर के अंदर, हर हम कोने कोने में हमने ये सर्जरीज करी हैं. एक सिंपल सा जवाब, दे फील वेरी हैप्पी व्हेन वी से ये फाइब्रॉइड है, उनको लगता है कि कैंसर बन जाएगा, इसे निकाल दिया जाए. सो वी यूज्ड टू रिमूव लॉट ऑफ फाइब्रॉइड्स, बट पिछले 10 साल के अंदर बिग चेंज हैज कम. नाउ ए डॉक्टर्स कैपेबिलिटी इज नोटेड बाय नॉट रिमूविंग इट. सो फाइब्रॉइड निकालना एक अच्छी बात नहीं है, और फाइब्रॉइड एक बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. कभी भी यूट्रस को, आई एम सेइंग फाइब्रॉइड वी कैन रिमूव वंस इन अ व्हाइल, बट यूट्रस को कभी निकालना नहीं चाहिए. यू शुड नेवर रिमूव अ यूट्रस फॉर एनी वुमन एट ऑल. अब मैंने ये बोला कि देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स, जो अगर हम एक गर्भाशय को दोबारा देखें, लुक एट द यूट्रस अगेन, सो द फाइब्रॉइड व्हिच इज इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ये जो वॉल में फाइब्रॉइड है, ये लाइनिंग को जहाँ बच्चे को बैठना है, इसको प्रेस नहीं कर रहा. अगर आप देख पा रहे हो, इसको प्रेस नहीं कर रहा. जी जी. इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड अगर वो यूट्रस के अंदर ही है और कैविटी के अंदर जाकर कैविटी को नहीं दबा रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एम्ब्रियोज होते हैं, जो बेबीज होते हैं ना, वो ट्यूब के जरिए यहाँ से कंसीव होते हैं और देन दे कम एंड गेट इम्प्लांटेड हियर. सो अगर फाइब्रॉइड अगर मसल के अंदर ही है, तो फिर वो कैविटी को अगर नहीं दबा रहा है तो हमें उसको नहीं निकालना है. दिस अबाउट द इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स. अब पहले धारणा थी जहां फाइब्रॉइड दिखा तो फाइब्रॉइड को निकालना है. अगर हमें 4 फाइब्रॉइड दिख गए तो बहुत फटाफट से निकाल देना है, पता नहीं क्या कर देगा फाइब्रॉइड, कैंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा। मेरी मम्मी को भी फाइब्रॉइड था, मेरी दादी को भी फाइब्रॉइड था, उन्होंने तो 30 साल में यूट्रस को निकाल लिया था, मेरी तो उम्र 28 साल की हो गई है, मेरा भी निकाल दीजिए। सो दिस इज द I've seen this thing talks occurring with me जी specifically. जी It travel quite a lot in the army. So यस simple answer is, अगर फाइब्रॉइड इंट्रामस्कुलर है, इंट्राम्यूरल है, तो नहीं निकालना। जी अभी अगर वो कैविटी को दबा रहा है, तब वी कैन टेक द कॉल किसे निकालना है कि नहीं निकालना है, सेकंड कॉल है, पर वहाँ ओके उसको भी हर केस में नहीं निकालना। देन वी कैरी आउट एन ओके हिस्टोस्कोपी एंड सी कि किस लेवल तक उसको दबा रहा है। नंबर 2, अगर कोई भी फाइब्रॉइड 4 या 5 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, यानी कि अगर इसे मैं नापूं स्केल के साथ में, अगर ये गांठ अगर 4 या 5 सेंटीमीटर की है, तो 5.5 सेंटीमीटर ऑफ फाइब्रॉइड वी डोंट रिमूव। इससे पहले जी हर फाइब्रॉइड को निकाला करते थे, फिर आया जी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल है कि अगर फाइब्रॉइड कैविटी को नहीं दबा रहा है और यहाँ चुपचाप से बैठा हुआ है और ग्रो नहीं कर रहा है, और किसी भी हमारी बहन को कोई तकलीफ नहीं है, शी इज नॉट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, पेन, शी इज कंफर्टेबल एंड द फाइब्रॉइड इज एसिम्प्टोमेटिक, फाइब्रॉइड इज एसिम्प्टोमेटिक एंड लाइंग क्वाइटली हियर, जी उस फाइब्रॉइड को हम छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट इवन फॉर आईवीएफ आई डोंट रिमूव सच फाइब्रॉइड्स एंड देयर आर enough papers on that we should not remove such fibroids. But yes, जी in case it is growing very fast, it is compressing the cavity, or this fibroid is giving a lot of symptomatic problems, तो उसको फिर हम निकाल सकते हैं। पर हर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड को नहीं निकालना, जस्ट नंबर 1। बट अगर फाइब्रॉइड ऐसा है, अगर ये फाइब्रॉइड है अंदर कैविटी के अंदर, अगर ये फाइब्रॉइड है तो इसको निकालना है। इस फाइब्रॉइड के साथ कभी भी प्ले नहीं करना है। एट द अर्लीस्ट रिमूव दिस फाइब्रॉइड एंड देन मूव अहेड। ओके नंबर 2, और अगर ये जी सर फाइब्रॉइड आता है यूट्रस की आउटर आउटर बाउंड्री के अंदर, अगर यहाँ से एक बड़ा सा फाइब्रॉइड आ जाता है, उसे कहते हैं सब सिरस फाइब्रॉइड, तो उस फाइब्रॉइड को भी हम नहीं निकालते हैं। काफ़ी पेपर्स हैं वो कहते हैं कि फाइब्रॉइड्स के अंदर पेन होता है, केमिकल्स आते हैं, बट ओवरऑल द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड। बट द आंसर प्रेजेंट व्हिच गिव टू पीपल इज दैट अंटिल द फाइब्रॉइड इज इन द कैविटी लाइक दिस, वाइट वाला जो दिख रहा है आपको, ऐसा है, जी जी या फिर बाहर होकर भी कैविटी को दबा रहा है, या फिर ऐसे सर्विक्स के अंदर है और सर्वाइकल कैविटी को दबा रहा है, तभी हम उस फाइब्रॉइड को निकालते हैं। तो नॉर्मली हर फाइब्रॉइड को नहीं निकालना होता है। एंड जो समय जैसे इवॉल्व हो रहा है, इनफर्टिलिटी के अंदर फाइब्रॉइड बहुत कॉमनली हमें दिखता है, तो फाइब्रॉइड को नहीं निकालना चाहिए। एंड नंबर 2, अगर फाइब्रॉइड का नंबर बहुत ज़्यादा है, हम तभी फाइब्रॉइड्स को नहीं निकालते हैं, बिकॉज अगर हमने देखा है कि लोग घबरा जाते हैं, मेरे 4 फाइब्रॉइड है, 5 फाइब्रॉइड है, सो दे कीप रिमूविंग द फाइब्रॉइड्स, 1 2 3। तो हमेशा समझिए कि अगर फाइब्रॉइड का नंबर ज़्यादा है, तो अगर हम निकालेंगे ना, तो पूरी जो मसल की जो मसल मास है, ये भी कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर यूट्रस कमज़ोर हो जाता है। जैसे स्ट्रेंथ चली थैंक जाएगी यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप। सो आंसर विल बी दैट we have very limited indications of removing the fibroid in infertility and for fertility problems. Yes, in case she is symptomatic, अगर वो यूरिन नहीं पास कर पा रही है, उसके पीरियड्स बहुत हैवी है, family is completed, she's got pain, she undergoes some sort of torsion, she undergoes rapid growth of the fibroid, and a lot of women have got symptomatic features like she'll have vomiting, she'll have difficulty in passing urine, she'll have difficulty in, passing stools, periods become painful. यस In that case, I think that would be a different call for removing the fibroid, but not for infertility. Thank you. यस So thank you very much, sir, for answering this question. So friends, like sir has already mentioned कि वक्त बदल गया है, तो let us not directly jump whenever we see a fibroid. Let's not jump to remove and assess the lady's situation and then take a call whether it needs removal or not. So sir, अब मेरा अगला सवाल ये है कि चलो मुझे फाइब्रॉइड है और मैंने निकलवा दिया है, तो क्या ये फाइब्रॉइड मेरी फर्टिलिटी या प्रेग्नेंट होने की क्षमता को अफेक्ट करेगा? ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। आई थिंक एक एक सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो देखिए, अगर हमने फाइब्रॉइड को निकाला, सपोज हमने इस फाइब्रॉइड को निकाला या इस फाइब्रॉइड को निकाला, तो आई जी थिंक इट विल एनहांस योर चांस ऑफ बिकमिंग ए मदर। वो कम नहीं करेगा, ओके उसको बढ़ाएगा। तभी तो हम निकाल रहे हैं ना उसको ऑर्बिटल। अगर वो यस फाइब्रॉइड उसकी फर्टिलिटी कम कर रहा है और हम निकाल रहे हैं इसको, तो फर्टिलिटी तो बढ़ेगी। बट येस, रिमेंबर वन थिंग, so this is for all my friends. We have around 29-30 people of who are with us now. So मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, बहनों, brothers and sisters,
my teachers and whosoever is present है, एक चीज़ याद रखिएगा कि फाइब्रॉइड की सर्जरी बहुत ही इंट्रिकेट सर्जरी होती है. ज़माना बदल रहा है और बदलते हुए ज़माने के साथ में देयर आर एक्सपर्ट्स हू डू सच सर्जरीज. एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वी कैन डू एवरीथिंग. हमें जैसे मैंने बोला कि ना हमारा तो काम था कि जितने फाइब्रॉइड निकालेंगे उतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे हम लोग, बट अभी ज़माना बदल गया है. तो फाइब्रॉइड को निकालना बहुत आसान है, परंतु फाइब्रॉइड आप कहीं पर भी दिखाएं, कहीं पर भी जाके ओपिनियन लें, पर फाइब्रॉइड आप निकलवाएंगे उनसे जो कि फर्टिलिटी के डॉक्टर हैं या फिर वो फर्टिलिटी के डॉक्टर की टीम के साथ काम करते हैं, तो दे नो किस फाइब्रॉइड को निकालना है और कितना निकालना है. कई बार मैंने देखा है कि जैसे पॉलिप, सो अर्पिता, पॉलिप फाइब्रॉइड पॉलिप कैन बी हियर, तो फाइब्रॉइड कैन बी हियर जी. एंड दे जस्ट गेट इट रिमूव्ड एंड फाइनली दे एंड अप विद लॉट ऑफ एडिशंस इनसाइड. तो अगर सर्जरी ठीक से नहीं होती है, दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स. एंड आई थिंक वी शुड गो टू द एक्सपर्ट्स, बिकॉज ये एक बॉडी के अंग को निकालना नहीं है, ये बॉडी के अंग को निकाल के फर्टिलिटी को इन्हेंस करना है. और अगर हमसे एक भी गलती हुई तो जो यूट्राइन कैविटी है ये और कमज़ोर हो जाती है, इट बिकम वीकर, और यहाँ पर बच्चा बैठ नहीं पाता है, दिल हैव झिल्ली बन जाती है, एडिशन बन जाते हैं. अब काफ़ी बार देखा जाता है खूब सारे फाइब्रॉइड्स होते हैं, 5-6 फाइब्रॉइड होते हैं. तो अगर डॉक्टर हम गलती करें और सारे फाइब्रॉइड्स को निकालना शुरू कर दें 5-6-7, तो पूरा यूट्रस वीक हो जाता है. देन अगेन द कैविटी विल बिकम इरेगुलर एंड देयर विल बी डिफिकल्टी इन कंसीविंग. तो फाइब्रॉइड पहली बात तो निकालना नहीं है, और जब निकालना है वहाँ निकालना बहुत ज़रूरी है, और फिर हमारे पास चारा ही नहीं है. पर तो निकालेगा कौन, ये डिबेट होता है पता. तो निकालने वाला जो है Yes. वो एक मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक सर्जन होना चाहिए, और वो फर्टिलिटी में काम करना चाहिए. उनको दे शुड नो कि अगर मैंने एक गलत स्टेप लिया सो ये पूरा का पूरा जो कैविटी खराब हो जाएगा. सो therefore they say that it will always enhance fertility, it will never reduce fertility, but if done in the right hands. Thank you. So another golden point by sir that if we decide to go ahead with surgery for fibroid, हमें fertility कम नहीं करनी है बल्कि बढ़ानी है. तो friends, please do remember when you are treating a patient for fibroids. So sir, my next question to you is that अब हमने fibroid भी निकलवा लिया, तो मैं कितना टाइम रुक सकती हूँ to try to get pregnant after removing the fibroid? So अभी ना अभी तो सिंपल इज दैट इन केस अगर मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ जी. या फिर मेरे को चोट लग गया जहाँ हमें टांके लगाने पड़े, सो व्हाट इन योर ओपिनियन विल बी द टाइम व्हेन वी हैव टू गिवन सम सॉर्ट ऑफ आराम एट होम. मुझे कई बार मेरे जब फ्रैक्चर हुआ तो बड़ा अच्छा भी लगता था, एक पीओपी लगा दिया और जाके घर में पड़े रहो. और वो एक समय मिलता था अपने आप से बात करने का. एज ए गायनेकोलॉजिस्ट तो हमेशा भागते रहते हैं. जब चोट लगती थी तो उसका एक पॉजिटिव रहता है कि वी कैन टेक रेस्ट एट होम एंड वॉच लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स एंड टीवी एंड गॉसिप. तो मैं इस सवाल को मैं आपके पास रिटर्न करता हूँ. तो मैं फुटबॉल को आपके पास फेंक रहा हूँ. आप मेरे को बताएं, जब किसी को चोट लगती है हाथ पे या फ्रैक्चर होता है, एक पीओपी लगाते हैं, तो कितना समय पीओपी को हम हाथ पे लगा के रखते हैं? अप्रोक्सीमेटली कितना समय पीओपी रहता है हमारे हाथ पे? हम एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 महीना भी कोशिश करते हैं वो हम प्लास्टर लगाए, ताकि हमारा जो हड्डी भी फ्रैक्चर हुआ या टूटा हुआ है उसको हम जॉइन होने दें, और ना सिर्फ जॉइन होने दें बट वो टिश्यू को अपनी स्ट्रेंथ भी वापस आनी चाहिए. सो थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है. बस. ब्यूटीफुल. आपने जवाब दे दिया. 2 months. आपने जवाब दे दिया. इसके बाद जब हम प्लास्टर निकालते हैं तो देन वी स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल और फुटबॉल अगेन, कि हम थोड़ा वेट करते हैं उस समय. क्या हम वेट करते हैं, कुछ करते हैं, हम फिजियोथेरेपी करते हैं. हाँ We जी, do हम physiotherapy, स्ट्रेंथनिंग we do some एक्सरसाइज. back therapy, है ना? तो around it takes around 3.5 months before you can start running again and start going to OT then working. Okay? Yes. इसी तरह से फाइब्रॉइड निकालना प्रॉब्लम नहीं है. किस फाइब्रॉइड को निकालना है, किस तरीके से निकालना है. कुछ फाइब्रॉइड हम पेट में चीरा लगा के निकालते हैं. सब फाइब्रॉइड वी रिमूव बाय हिस्ट्रोस्कोपी, सम बाय लेप्रोस्कोपी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच गुड वी आर विद व्हाट टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इंडिकेटेड. परंतु फाइब्रॉइड निकालने के बाद वी हैव टू गिव टाइम फॉर बॉडी टू हील. तो अगर हमने यूट्रस की मसल को काटा, लुक एट दिस, लाइक अगर हमें हाथ पे स्प्रेन होता है
या फ्रैक्चर होता है, वी आर गिवन ए कास्ट फॉर अराउंड 4 to 6 weeks और मे बी 2 or 3 months। इसी तरह से अगर इसे देखिए, अभी आप सिंपल सा सवाल है मेरा, अगर हमने यहाँ से फाइब्रॉइड को निकाला तो मसल भी तो निकलेगी ना, साथ में भी कटेगी, साथ में मसल के अंदर भी चीरा लगता है। जी सो इट नीड्स टाइम जी टू हील। So we have to give it यस around 3 to 6 months for it to healing properly। और क्यों है अर्पिता? हमने फाइब्रॉइड क्यों निकाला? हमने फाइब्रॉइड निकाला या तो उसे ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग थी, उसे खून जा रहा था, महावारी ज़्यादा हो रही थी, पेन था, ये एक डिफरेंट इशू है। बट अगर हमने फाइब्रॉइड, इन केस वी रिमूव द फाइब्रॉइड फॉर फर्टिलिटी, सो हमें जल्दी होती जी है, तो फटाफट से हम फाइब्रॉइड के अंदर हम इलाज जी करें। जी अगर हम देखें 100 में से कितने लोगों को रिकरेंस होता है, आई थिंक in my what I see is that around 15 to 18% people have got recurrence of typhoid। छोटा सा बड़ा हो गया, ये नहीं कि बहुत बड़ा हो गया, but the recurrence is around 20% depending upon how well we can diagnose a recurrence। तो हमारा एक मोटिव रहता है कि फटाफट से एक स्त्री प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा मत हो कि फाइब्रॉइड दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए। सो इट्स ए वेरी फाइन बैलेंस। बॉडी को हील भी करना है, अगर हमसे फटाफट से अगर हमने उनका आईवीएफ कर दिया या आईयूआई करा, शी बिकम्स प्रेग्नेंट और मसल कमजोर है। जी अगर मसल कमजोर है और यूट्रस की वॉल कमजोर है, then again she can have, she can have perforation in the uterus, she can have rupture of the uterus। और अभी बॉडी हील ही नहीं हुई है, बॉडी बॉडी से पीओपी निकाला एंड स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल, तो क्या होगा, अगेन द मसल इंजरी कैन अकर। सो वी शुड आइडली गिव अराउंड 3 to 6 months और 4 months फॉर हर टू हील। और ये समय बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। इस समय के ऊपर मैंने कई बार देखा है बहनों को, वो अपना देखभाल नहीं करती, उनके फील के फाइब्रॉइड को निकाल दिया, तो बायोप्सी के लिए चला गया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गया, कैंसर भी नहीं है, बट हमारी बॉडी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग निकाला गया है हमारी बॉडी का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो द वुमन हैज टू टेक जी केयर। सो आई थिंक जी she let the body heal by positivity, and then she can think of getting pregnant again। That can be natural intercourse, it can be doing IUI or IVF, but 3 से 4 महीना is what I recommend। So in case you don't want to have complication later, 4 महीना तक आराम करना चाहिए fibroid के अंदर। जी Yes। Thank you so much, sir. So, friends and colleagues, we wait for 3 to 4 months minimum before we initiate her journey into trying to conceive. Or, sir has also answered one very important question in his golden words. Ki many patients are going to ask us what are the chances of recurrence of fibroids after undergoing surgery. Like sir said, about 15 to 18%. So, we must keep this in mind. एंड सर अनदर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू पुट टू यू इज अब मन मुझे सर्जरी नहीं करानी है तो दूसरे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, क्या कोई सप्लीमेंट्स है या नॉन सर्जिकल मेथड्स है जिससे मैं फाइब्रोइड्स का ट्रीटमेंट करा सकती हूँ? So Arpita, again a very beautiful question you have put across। Every question is, is testing me, and I think I'm preparing for my every exam। But it's very important। This is what people ask us every day। हर रोज का वो जी जी यही सब 5-6 सवाल उभर के सामने आते हैं। And I think पूछते what you are रहते हैं। picking up are all pearls of questions। जी First of all, मैं सर्जरी ना कराऊं ये उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज जहाँ सर्जरी करनी है हमने वो बहुत कम ऑप्शन कर दिए हैं। पहले मैंने क्या बोला था कि माई कैपेबिलिटी वॉज टेकिंग आउट द यूट्रस। अगर मैंने 20 मिनट के अंदर सर्जरी कर दिया तो मैं बहुत अच्छा बेहतरीन डॉक्टर हूँ। जी और मैंने कितने यूट्रस में सर्जरी करा एक साल के अंदर, मेरा रिकॉर्ड, मैंने 180 केसेस करे, 200 केसेस करे, तो मैं बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हूँ। अभी अगर मैं किसी डॉक्टर का अगर मैं एनालिसिस ऑडिट करता हूँ तो अगर उसका उस डॉक्टर का सीजरियन का रेट ज़्यादा है या हिस्टेक्टोमी का रेट ज़्यादा है तो ये अच्छी बात नहीं है। आई वुड से आप इतना ज़्यादा यूट्रस क्यों निकाल रहे हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेलिंग अस नॉट टू टेक आउट uteruses। You are aware of the government। यस So that is number one। So we don't operate। एक धारणा थी जहाँ फाइब्रॉइड दिखा उसको निकाल दो। ऐसे क्यों ना, फाइब्रॉइड हमारे बॉडी में एक दुश्मन बैठा हुआ है, उसको नहीं निकालेंगे तो पता नहीं कैंसर बन जाएगा और उसकी बॉडी में फैल जाएगा। लोग कहते थे ये फाइब्रॉइड मेरी छाती में चला जाएगा, ये फाइब्रॉइड मेरे को लगता है कि ओवेरियन ट्यूमर। नो, सो अभी तक पीपल फील के ओवेरियन फाइब्रॉइड इज लाइक ए कैंसर, इट गो टू देयर ब्रेन, लिवर, लंग्स।
तो ऐसा है ही नहीं, Yes. तो फाइब्रॉइड हम निकालते ही नहीं है। अगर एक फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर का भी है और यूट्रस की वॉल में है, इंट्राम्यूरल है, तो हम उसको निकालेंगे? उसको हम नहीं निकालेंगे। नहीं अगर वो निकालेंगे। कैविटी को Yes. नहीं करा, उसे नहीं निकालेंगे। एंड मेनी टाइम्स वी हैव टू गिव ए चॉइस टू द पेशेंट। आई से 5 सेंटीमीटर का है, मैं नहीं निकालना चाह रहा हूँ, एज पर गाइडलाइंस हम नहीं निकालना चाह रहे हैं, यू कैन कम बैक टू मी विद सेकंड ओपिनियन। So normally go and come back with a second opinion. 99% of people agree to us, but few people say नहीं, मेरे को तो डर लग रहा है, मेरा निकाल दो before I will take it out. अगर फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर है, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर 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 बैठा हुआ है, तो हमें उसको निकालना ही निकालना है। वी डोंट हैव एनी चॉइस एट ऑल। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि फाइब्रॉइड अगर निकालना है तो वो निकालना ही है, बिकॉज हमारे इंडिकेशन बहुत कम हो गए हैं निकालने के। बट जी येस, अगर जी फाइब्रॉइड यूट्रस की बॉडी के बाहर है, लाइनिंग के बाहर है, और आप उसे नहीं निकालना चाहते हैं, एब्सोल्युटली गुड, हम सच नहीं निकाल रहे हैं उसको। तो अगर पेन है पेशेंट को, वी कैन गिव मेडिकल मैनेजमेंट, वी कैन गिव ओसी पिल्स, वी कैन गिव लॉट ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल, वी कैन गिव some injections come which are called Dupride, Decapeptyl, Triptorelin. A lot of things are available which you give to the patient and they will make the fibroid small. That is number one. Number two, there are some ways by which we use ultrasound radiation. We use ultrasound to make the fibroid shrink. We can use that. And third is embolization. जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो अगर जैसे आप तुम्हारा, आई टेक इट दिस अगेन अर्पिता जी, अगर ये फाइब्रॉइड है, जी तो फाइब्रॉइड के अंदर तो खून नहीं होता है, पर फाइब्रॉइड की वॉल के आसपास बहुत खून होता है, जैसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जी। सुना होगा आपने कि Yes. रिंग ऑफ फायर इज Yes. 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 फाउंड इन 3 places। वन, इट इज फाउंड इन एटोपिक प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी जी आती है ट्यूब के, अगर प्रेगनेंसी मेरी ट्यूब में आ गई, देख पा रही है पूरा ट्यूब जी। लाल हो गई, हाँ जी सर, पूरी ये लाल हो नॉर्मल गई। ट्यूब है, ये नॉर्मल ट्यूब है। अगर एटोपिक जी प्रेगनेंसी हुआ, देन वी से वी हैव टू डू रिंग ऑफ फायर, कि खून से भर गई है। अगर कॉर्पस जी ल्यूटियम है किसी की बॉडी के अंदर, अगर आप देखें तो अगर ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो दैट हैज जी। रिंग ऑफ फायर। रिंग और ऑफ फायर। फाइब्रॉइड के अंदर भी रिंग ऑफ फायर होता है, यानी कि इसके जी आसपास खूब ब्लड होता है। तो ये ब्लड ही फाइब्रॉइड को जीवन दे रहा है, ये ब्लड ही फाइब्रॉइड को इस्ट्रोजन दे रहा है, हार्मोन्स दे रहा है। अगर हमने इस जी ब्लड सप्लाई को काट दिया, तो फाइब्रॉइड का हाई पॉसिबिलिटी फॉर आउट। There are arteries in the pelvis. There are some blood vessels in the pelvis आ रहे हैं, जो जहाँ से खून अंदर जाता है ना, हम उनको एम्बोलाइज कर जी। देते हैं। We carry out, it is called interventional radiology. We will embolize them. रेडियोलॉजी। As a result, blood supply will reduce and fibroid will shrink. So 3 methods are there जी to reduce the size. But uh, nowadays we are becoming, we go beyond medicine therapies and surgical therapies and ultrasounds and embolizations. We say yoga may help, having good nutritious diet may help. See, a woman has having heavy periods, when she has good nutritious diet, ठीक से सोती है, सोना सबसे बड़ा इलाज, आई से फॉर एनी इलनेस इज स्लीपिंग। अगर कोई भी स्त्री 7 या 8 घंटे सोती है ठीक से, शी टेक्स डाइटरी सप्लीमेंट्स, शी टेक्स गुड क्वालिटी फूड, शी टेक्स लॉट ऑफ फ्रूट्स, आई थिंक दैट कैन ऑल्सो जी मेक हर हील, हर बॉडी विल हील। फाइब्रॉइड्स may not heal completely, but वो she can escape इस surgery by positive, क्या बोलते हैं, positive reaffirmation, एनर्जी। because she, yeah, so पॉजिटिव। she reaffirmed everything. She reaffirmed that I am fine. I think that's one more way of doing yoga, meditation, removing stress from the body. अगर हम रोज बैठ के अपना फोन उठाएंगे और ढूंढेंगे I've got a fibroid, what to do, I think अभी तो हर फोन के अंदर तो अभी एआई आ गया है। जी एआई आने के साथ में उनको दुनिया भर घुमाता रहेगा और हम घूमते रहेंगे। So I think कभी confusion हो तो you can come back to our website, you can contact Arpita, you can contact me, we can guide you through for this. So हर फाइब्रॉइड को निकालना अच्छी बात नहीं होती। That's what I would like to tell you. ओके सर, सो इफ देयर इज अ फाइब्रॉइड और हमने डिसाइड किया है कि दिस फाइब्रॉइड डजंट नीड टू बी रिमूव, तो क्या ये हमारे आईवीएफ के सक्सेस रेट को अफेक्ट करेगा या ये नहीं करेगा? Again, answer is difficult but नहीं करता है। देखो, there are multi-centric studies, Arpita, all over the world people are doing studies and the जी guidelines जी say अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की लाइनिंग को दबा नहीं रहा है,
नंबर जी। पेशेंट को किसी तरह का, किसी में हमारी बहन को किसी तरह का तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, शी इज ओके, शी दे आर एसिम्प्टोमेटिक, तो हमको फाइब्रॉइड को नहीं निकालना, उसे निकालने का फायदा नहीं है। बट अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की कैविटी के अंदर है, या फिर कैविटी को दबा रहा है किसी तरह से, उसको जब बेबी को बैठना है उस कैविटी को दबा रहा है, छोटा कर रहा है उसको, तो ऐसे फाइब्रॉइड को निकालना होता है। अगर हम नहीं निकालेंगे देन आर फर्टिलिटी रेट्स कैन कम डाउन। बट अगर हम अगर फाइब्रॉइड देखिए, तो फाइब्रॉइड्स कैन बी एट मेनी प्लेसेस। अगर फाइब्रॉइड इज लाइंग हेयर, आई एम नॉट वरीड, कैविटी इंटैक्ट है। बट यस। अगर मेरा फाइब्रॉइड इज सिटिंग हेयर जी। इन दिस कॉर्नर, अगर मेरा फाइब्रॉइड सिटिंग हेयर, इसको कॉर्नर फाइब्रॉइड बाहर बैठा जी। हुआ है, इस फाइब्रॉइड जी। को निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज ये फाइब्रॉइड will block the tubes, and as a result the sperms and eggs cannot travel well. So अगर फाइब्रॉइड जी। cervix के अंदर है, fibroid is lying in the cervix here, then I think that fibroid can also be, uh, we have an alternative that we can do a cesarean section later. But this fibroid can be a problem because it may compress the cavity. This may need removal. Fibroid sitting here outside also may need removal. A fibroid in the cavity may need removal. If fibroid like this white fibroid may need removal. So जी। there are, Yes. so अगर ये fibroid यहाँ पर है, definitely yes, it may reduce the chance of IVF or IUI or normal intercourse, इनको तो निकालना पड़ेगा हमको, that we should be removing them. But again अर्पिता, डॉक्टर अर्पिता, जब भी हम इन्हें निकालेंगे, it has to be removed by qualified people. So people should know Yes. कि ये एक बॉडी का अंग निकाल नहीं रहे हैं हम एक फर्टिलिटी इनहेंसिंग सर्जरी कर रहे हैं, हम कुछ रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम कुछ इनहेंस करना चाहते हैं. सो आई थिंक देयर आर very good people, laparoscopic surgeons or gynecologists who do the surgery. So pick up your doctor very properly at this point of time. जी जी Thank you. सर. So thank you so much sir. So my last question to you is कि फाइब्रॉइड है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कैन दिस फाइब्रॉइड complicate my pregnancy, cause any kind of complications with my pregnancy? या तो ये दो चीजें हैं. एक सवाल मैं एज एन एल्डर ब्रदर आई एड ऑन जी. द परमिशन, आई एड वन मोर क्वेश्चन कि क्या जी. प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड को परेशान कर सकती है या फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी को परेशान कर Yes. सकता है? इस तरह दो तरह से हम इस बात को देखते हैं. सो डॉक्टर Both अर्पिता, ways. अगर है ना, ठीक ना, सो देयर आर टू वेज यू जी कैन जस्ट लुक एट absolutely. इट. Yes. Yes. तो अगर फाइब्रॉइड, अगर फाइब्रॉइड गर्भाशय के अंदर है और या फिर रीअकर कर गया है या हमने निकाला ही नहीं है, सो व्हाट कैन इट डू? अगर हमने उसको निकाला ही नहीं है, इन दैट केस इट विल, इस कैविटी को वो प्रेस कर देगा, वो दबाएगा इस कैविटी को. तो जो हमारा बेबी है, लिटिल बेबी, दैट वोंट कम डाउन head down. So they can have a breech presentation or a transverse presentation. So there is a high chance of getting a cesarean section for the patient. So fibroid can lead to mal presentation of the baby. So babies can be presenting in a, we call it a mal presentation. Normally baby का presentation क्या रहता है? Head down. But अगर fibroid आ जाता है, तो then baby can be upside down or it can be in a lateral position. So we need to carry out a cesarean section for them. That is how fibroid can lead to problem with the baby's delivery. अगर फाइब्रॉइड नीचे है, सर्विक्स के पास में है, तो फिर वो बेबी को नीचे नहीं आने देगा. Again they will need a cesarean section. Sometimes the fibroid, due to some problem, can become bigger. Normally we always believe that fibroid will always regress in pregnancy, but some of the fibroids can become bigger in pregnancy. They grow in pregnancy. They become more vascular in pregnancy. They undergo something called infarction. So they get infarcted. So infarction मतलब इसके अंदर खूब सारा खून भर जाता है, and they can rupture. They can rupture also. They are called infarction. And third is कि अगर हमने सर्जरी करा है, तब भी अगर सर्जरी बहुत रेयर है, अब तक वेरी वेरी रेयर, बट आई हैव सीन केसेस occurring. आई हैव सीन पीपल हैविंग प्रॉब्लम्स दैट अगर हमने ऐसे पेशेंट में जहाँ पर हमने फाइब्रॉइड निकाला है और फाइब्रॉइड वॉल से निकाला है, पूरा फाइब्रॉइड निकाला है, और वो शी बिकम्स प्रेग्नेंट, व्हेन शी गोज इनटू लेबर, दिस यूट्राइन वॉल में rupture. It can be rupture of the uterus or perforation of the uterus. They can all lead to problems to the mother, problems to the baby.
तो मैं बात को दोबारा से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि हम जब भी ऐसा कोई केस करें, it should be done by a very qualified doctor who thinks what's going to happen to this lady after fibroid removal. फाइब्रॉइड निकाल के हम अपने घर नहीं पहुंच रहे हैं. अगर मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और इससे इलाहाबाद, तो मैंने ट्रेन में बैठ गया, फाइब्रॉइड निकाल लिया, तो नो आई रीच माई होम, फाइब्रॉइड इज आउट, आई एम हैप्पी. ऐसा नहीं है. फाइब्रॉइड निकालने के बाद में हमारी बहन की जर्नी दोबारा शुरू होगी. यू गोना स्टार्ट अगेन Right. for next 6, 7, 8, 9 years. So we have to be very, very careful when we offer them any type of surgery. So that will be my very simple answer to you. Thank you so much, sir. So friends, so our take home message that we have learned from sir today is हम कौन से fibroids निकालेंगे, submucous fibroids या intramural fibroids वही निकालेंगे जो हमारे cavity का shape change करेंगे, indent करेंगे. And one thing we must all remember that the surgery will be a fertility enhancing surgery and only in hands of those people who are skilled at it. And we take a holistic approach towards treatment of fibroids. Thank you so much, sir, for your pearls of wisdom. And to my august friends who have joined for giving your time and patient hearing. And this is me, Dr. Arpita Gandhi from Pune, signing off. And we'll be coming back soon with another wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you. I think Arpita, some people are wishing us Eid Mubarak. Eid Mubarak. So Thank you. I think we have Dr. Hasna Aki. She's there and she's wishing all of us Eid Mubarak. So I think जी आज जी का दिन बड़ा लकी है हमारे लिए. आज का दिन बहुत लकी है कि जी आज सर इस we are having आज सबके रोजे खत्म हुए. So I वंडरफुल feel डे very all of you can eat today, and today you won't have to wait for iftar. You can eat what you want to eat. So thank you जी so much. God bless all of you. Arpita, thank you very much for being with me, and you've been a perfect moderator and host. Thank you so much. So as we now check थैंक out, यू सो in case anyone मच wants to know anything, कोई सवाल हो, or in case you need to know something about anything, not only fibroids, feel free to call us. We have our numbers running here. You can call us. Call Arpita. She's at Pune. She's a leading IVF practitioner at Pune. You can call her. You can call me. Go to a website. थैंक यू सो मच So जल्दी मिलते हैं. We'll meet again within 15 days. जी सर Thank you so much. यस Namaste. Jai Hind. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you.